أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک اوپن کریں, آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آ رہی ہے. چلو ٹھیک ہے, ہماری کلاس کا ٹائم ہو گیا, ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بک شیئر کرتی ہوں, اور جب تک باقی لوگ جوائن کرتے ہیں ہم پوائنٹس ٹو ریممبر پڑھیں گے انشاءاللہ لاسٹ لیسن کے. سوری کیا ہو گیا, چلیے تو آپ کے ساتھ شیئر ہے, بک شیئر ہے آپ کے ساتھ؟ جی جی بہت اچھا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا ہم پوائنٹس ٹو ریممبر پڑھتے ہیں. آ جائیں, کون پڑھے گا؟ پروین کچھ شروع کیجئے. انگلش آتی ہے نا پڑھنی؟ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ نہیں آتی بات. اچھا ناصرہ آپ آئیں گی؟ ورنہ میں پڑھ دیتی ہوں نا. جی میں ناشتہ کر رہی ہوں باجی. اچھا ٹھیک, صحیح ہے, آپ ناشتہ کیجئے, میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. سنیے غور سے, ٹھیک ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے آج کا, اور سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ گرامر کا یہی والا ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو پھر گرامر سمجھ آ جاتی ہے. اچھا, points to remember. In this lesson we will learn the use of preposition. ٹھیک ہے, اور نمبر 1 کیا ہے, Arabic nouns have endings to show their functions in the sentence. Arabic nouns کیا ہوتے ہیں؟ پہلے تو nouns کو دیکھنا ہے, noun ہوتے کیا ہیں. noun کی پہچان کیا ہے پروین؟ noun کی پہچان کیا ہوتی ہے anyone؟ تنوین اور ال کے ساتھ ہوتا ہے اسٹارٹ, آخری میں تنوین ہوتی ہے. بالکل ال کے ساتھ نہیں ہوگا تو بالکل بالکل یہی ہوتا ہے. اچھا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ Arabic nouns have endings to show their functions. سینٹینس کے اندر ان کا فنکشن جب شو کیسے ہوتا ہے؟ اینڈنگ سے ہوتا ہے, کہ وہ جملے میں کیا بن رہے ہیں, سینٹینس کے اندر وہ کیا بن رہے ہیں, مبتدا بن رہے ہیں, خبر بن رہے ہیں, فائل بن رہے ہیں, اینی تھنگ. اچھا, جیسے اب انہوں نے ایگزامپل دی ہے البیت الجدید, تو لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ لاسٹ لیٹر ہے یہ, ٹھیک ہے, لاسٹ لیٹر ہے دال. اب اس کی اینڈنگ کیا ہے؟ دمے کی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک دمہ یا 2 دمے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے یہ آپ کی کیا نارمل اینڈنگ ہے. جب ایک دمہ آئے گا یا 2 دمے آئیں گے تو وہ نارمل اینڈنگ ہوگی, ٹھیک ہے. اب یہ اینڈنگ چینج کیسے ہوتی ہے؟ نارمل تو یہ والی ہے, جو اس کے چینج کیسی ہوگی؟ جب پیچھے سے کوئی لیٹر آئے گا تو یہ چینج ہوگی, کوئی ایسا حرف آئے گا جو ان کو چینج کرے گا, ورنہ یہ چینج نہیں ہوگی, یہی رہے گی. البیت جدید, what's the meaning of this البیت جدید؟ نیا گھر. نو, یہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے نا. اچھا, یہ نیا گھر ہے. ہاں یہ نیا گھر ہے, یا یہ گھر نیا ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا. یہ گھر نیا ہے, یہ گھر. اچھا یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں یہاں پہ. یہ کے لیے, ہاں یہ کے لیے جو ورڈ آتا ہے وہ آتا ہے ہاذا, ٹھیک ہے, لیکن ہاذا تو یہاں پہ آ ہی نہیں رہا, تو یہ کو تو نکال دیں, ٹھیک ہے. البیت جدید, دا ہاؤس از نیو انگلش میں, اور اردو میں کیا ہے؟ گھر نیا ہے. بیتو گھر, جدید نیا, اور آگے ہے کا لفظ لگا دیں گے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے گھر نیا ہے بن جائے گا. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں, کوئی پڑھے گا کہ اس کو؟ کوئی آئے کلاس میں بھی آئے لوگ ماشاءاللہ, شبنم بھی ہیں, یاسمین آئی ہیں, علینا. اس ریڈنگ کو, اس کو کوئی کرے گا کہ انگلش کی تھوڑی ریڈنگ کرے گا؟ anyone who is ready؟ کوئی نہیں کر رہا تو میں کرتی ہوں. کریے. A noun with a normal ending
is said to be in the nominative case. In Arabic called marfu'. इसको नॉर्मल एंडिंग को क्या नाम देते हैं? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस यानी अरबी में क्या कहते हैं? या तो आप मरफू याद रख लें, अरबी में मरफू याद रख लें। नॉर्मल एंडिंग अगर एक दम्मे और दो दम्मे से आएगी तो उस नाउन को कहेंगे कि ये मरफू है, ठीक है, मरफू है। या फिर नॉमिनेटिव केस, उसको आप याद रख सकते हैं। आगे पढ़िए। After preposition, this ending changes to, for example, ई में चेंज हो जाती है, कसरा में चेंज। ये आई का मतलब कसरा है, आई का मतलब कसरा है और ऊ का मतलब दम्मा है। ऊ का मतलब यानी अगर यू लिखा हुआ है ऊ तो उसका मतलब है दम्मा, ठीक है, और आई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कसरा। आप हाँ अच्छा ठीक है, द हाउस, हाँ वहां पे आपका यू लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पे कसरा के लिए क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है। After a preposition, this ending changes to e, I कह लें। फॉर एग्जाम्पल अलबैतु, अब ये अलबैतु क्या है? ये नॉर्मल एंडिंग है, देखा यू लिखा हुआ है ना जी, तो ये नॉर्मल एंडिंग है। और जब ये अलबैती हो जाएगा, इसमें आई शामिल, देखें अलबैती, ये देखें फिल बैती, हाँ फिल बैती। ये बैती कैसे हुआ? पीछे फी लगने से, और फी के हरफ जर की वजह से। तो नॉर्मल एंडिंग जो होती है, जो मरफू सिस्टर्स माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें, शाबाश। अच्छा, तो नॉर्मल एंडिंग कैसे चेंज होती है? जब पीछे से प्रेपोजिशन आता है, कोई फी आता है, मिन आता है, इला आता है, तो ये नॉर्मल एंडिंग फिर चेंज हो जाती है, किसमें? कसरा में चेंज हो जाती है, ठीक है। कसरा को आई लिखा है इन्होंने यहाँ। अच्छा, जैसे बैतुन है तो अब ये किसमें? बैतुन का मीनिंग होता है आ हाउस, ठीक है। अल बैतु का मतलब होता है हाउस, द हाउस। अल बैतु का मतलब द हाउस, और जो आपका बैतुन है उसका मतलब है आ हाउस। अच्छा, बैतुन जब प्रेपोजिशन आएगा तो ये नॉर्मल एंडिंग किस में चेंज होगी? प्रेपोजिशन की वजह से कसरा में चेंज होगी। क्या बन जाएगा? कसरतैन में। हाँ, कसरतैन में। अगर दो दम्मे डले हैं तो वो आपके कसरतैन में चेंज करेंगे, दम्मतैन कसरतैन में चेंज होगा। अच्छा जी, फी बैतिन हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? फिल बैती का मतलब भी इन हाउस ही है, और फिल बैती का मतलब इन हाउस, ये दोनों का मीनिंग सेम सेम ही, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन एंडिंग चेंज हो गई ना। अच्छा, नॉर्मल एंडिंग क्या होती है? वो आपको पता है, एक दम्मा या दो दम्मा होती है। प्रेपोजिशन आया पीछे से तो उसने नॉर्मल एंडिंग को चेंज कर दिया कसरा में, ठीक है, और वो क्या हो गई? अलबैतु से फिल बैती, और बैतुन से फी बैतिन हो गई। अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल उन्होंने दी है, अलल मक्तबी। अला क्या है? अला इज अ हर्फ, ठीक है। अब ये क्या करता है अला? ये भी आपकी एंडिंग को चेंज करता है, किसमें? अल मक्तबू को उसने चेंज कर दिया, किसमें? अलल मक्तबी में चेंज कर दिया। असल में क्या था? अल मक्तबू था, नॉर्मल एंडिंग के साथ अला जब आया प्रेपोजिशन तो उसने उसको दम्मे को किसमें चेंज कर दिया? ये है नॉर्मल एंडिंग ऊ, इसको उसने आई में चेंज कर दिया। आगे पढ़िए। A noun preceded by a preposition is said to be the genitive case in Arabic, majroor. अच्छा, अब ये जो नया केस आया ना हमारे पास, नया आ गया ना एक केस, तो इसको क्या कहते हैं? इसको नॉमिनेटिव केस की बजाय जेनिटिव केस कहेंगे, जेनिटिव केस कहेंगे, ठीक है। तो हमने नॉमिनेटिव केस भी पढ़ा, उसको अरबी में मरफू कहते हैं, इंग्लिश में उसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अगर दम्मा होगा ये नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। और जैसे ही प्रेपोजिशन आएगा तो वो कसरा में चेंज होगा, तो फिर उसको नॉमिनेटिव केस की बजाय जेनिटिव केस कहेंगे। और अरबिक में क्या कहेंगे? मजरूर, मजरूर, मजरूर कहेंगे। तो हमने दो केसेस पढ़े, बेसिकली सब कुछ भूल जाएं, मरफू और मजरूर, ये दो वर्ड आपने याद रखने हैं, सिंपल।
اگر انگلش میں نہیں جانا چاہتے تو یہ انگلش عربی کے یاد رکھیں. مرفوع یہ آپ کی نارمل اینڈنگ ہے, دمہ یا دمتین, اور یہ آپ کی کسرہ یا کسرتین. یہ کب ہوگی؟ جب پیچھے سے کوئی حرف جر آئے گا. حرف جر پریپوزیشن حرف جر ہوتا ہے, وہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ نارمل اینڈنگ کو مجرور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, جینیٹیو کیس میں کر. آگے پڑھیے نمبر 2. In this lesson, we also learn the two pronouns huwa, he, it, and he or it, and hiya, she or it. اب ہوا کی میننگ ہی ہوتا ہے, ہیا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ شی. ٹھیک ہے, جب پرسن کے لیے یوز ہوں گے ہوا اور ہیا تو ہم کیا کہیں گے؟ ہی اور شی کہیں گے. لیکن کسی آبجیکٹ کے لیے یوز ہوں گے تو پھر ہم کہیں گے اٹ. ٹھیک ہے, ابھی اس کے ایگزامپل بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہوا کا میننگ ہی بھی ہوتا ہے اور اٹ بھی ہوتا ہے, ہیا کا میننگ شی بھی ہوتا ہے اور اٹ بھی ہوتا ہے. جیسا ٹائم, جیسا ہمارے پاس ماحول ہوگا ویسے اس کا میننگ کریں گے. اس کے بعد آگے پڑھیے. In Arabic, all nouns are either masculine or feminine. A masculine noun is referred to by the pronoun huwa. Whether it denotes a human being, an animal, or a thing. For example, where is the boy? Aina al-walad. آگے. He is in the mosque. Huwa fil masjidi. Where is the book? Aina al-kitabun. Kitabu hoga ji. Aina al-kitabu. It is on the table. Huwa ala al-maktabi. It is on the. اب ہم یہ نہیں کہیں گے he is on the table. یہاں پرسن آیا تھا تو ہم نے ہی ٹرانسلیشن کیا تھا. جب آپ کے پاس بک آئی, آبجیکٹ آیا, تو آپ نے اس کا ٹرانسلیشن ہی میں نہیں کیا, اٹ میں کیا. کس کا؟ پروناؤن کا, ہوا کا. ہوا کا ٹرانسلیشن ہی بھی ہو سکتا ہے, اٹ بھی ہو سکتا ہے, ڈپینڈنگ آن دا سچویشن. اچھا آگے پڑھیے. یہ بھی آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ. آگے پڑھیے. And a feminine noun is referred to by the pronoun hiya, whether it denotes a human being, an animal, or a thing. For example, where is Amina? Aina Aminatu. She is in the house. Hiya fil bayti. Where is the watch? Aina as-sa'atu. It is on the bed. Hiya ala as-sariri. اچھا ٹھیک ہے, ابھی آپ سمجھائیے ذرا اس میں کیا کہا گیا. اس میں فیمیل کا بتایا جی, مجھے کہا آپ نے. ہاں آپ کو ہی کہا ہے, آپ کے پاس مائک ہے نا. تو ہیا جو ہے یہ آپ کا کیا ہے؟ فیمیل کے لیے, فیمینائن کے لیے پروناؤن ہے. ٹھک ہے. ہاں, اس کے بھی دو میننگ ہوتے ہیں. اس کی میننگ شی بھی ہوتا ہے, اٹ بھی ہوتا ہے. اب بتائیے شی کب ہوتا ہے, اٹ کب ہوتا ہے؟ جی, جب آپ کسی پرسن کو ضمیر دینا چاہیں, جیسے پرسن کو بات کرنا چاہیں تو ہیا لگائیں گے, اور جب کوئی غیر عاقل جیسے کوئی چیز کے بارے میں کہیں گے کسی, تو پھر اٹ لگائیں گے. گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. ہیومن بینگ کو کیا کہتے ہیں؟ عاقل کہتے ہیں. اس میں عقل ہوتی ہے نا, تو اس کو عاقل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اینیمل اور تھنگس جو ہوتی ہیں, آبجیکٹس جو ہوتی ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ غیر عاقل. تو عربی زبان میں یہ ڈیویژن ہے. ٹھیک ہے, عاقل اور غیر عاقل کی. ہم اردو اور انگلش میں کہتے ہیں لیونگ تھنگ اینڈ نان لیونگ تھنگ. عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں عاقل عقل ہے یا نہیں ہے. اب دیکھو, غیر عاقل میں آپ کے اینیمل بھی آ گئے, حالانکہ یہ لیونگ تھنگ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ غیر عاقل میں آپ کے اینیمل بھی آ گئے, حالانکہ یہ لیونگ تھنگ ہے. اگر انگلش اردو میں دیکھیں گے تو یہ جاندار میں آئے گا, اور باقی آبجیکٹس جو ہیں وہ آپ کے کس میں آئیں گے؟ وہ آپ کے اس میں آئیں گے, غیر جاندار میں. عربی میں جو ڈیویژن ہوتی ہے وہ عاقل غیر عاقل, اور جو اردو انگلش میں ہوتی ہے وہ لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ, جاندار غیر جاندار. تو ہم نے عربی پڑھنی ہے تو ہم عربی کو دیکھیں گے, انگلش کو نہیں دیکھیں گے.
जानदार में इंसान भी आ जाते हैं उर्दू में, इंग्लिश में, और आपके एनिमल्स भी आ जाते हैं, जानवर, एनिमल्स सारे आ जाते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाते हैं, गैर जान, इसमें आपके ऑब्जेक्ट्स, चीजें आ जाती हैं सारी, गैर जानदार में ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं सारे, थिंग्स आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स जो भी होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। ये डिवीजन हमने नहीं करनी है, ये वाली डिवीजन हमें नहीं करनी है, एक सेकेंड, ये डिवीजन नहीं करनी है, हमें ये वाली डिवीजन करनी है, पर्सन्स और नॉन पर्सन जो लोग हैं। तो इसमें आपने देख लिया कि ही का और हुआ का इस्तेमाल किस तरह होता है, आकिल के लिए और गैर आकिल के लिए। गैर आकिल के लिए इट यूज करेंगे, इट इज ऑन द टेबल, इट इज ऑन द बेड। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम करते हैं मोस्ट फेमिनाइन। मोस्ट फेमिनिन नाउन्स एंड विद अ राउंड ता, but there are some which do not have any ending. राउंड ता को ता मरबूता कहते हैं ना। बिल्कुल कहते हैं। और मोस्टली क्या होता है, फेमिनाइन नाउन्स के आखिर में गोल ता आती है। नामों के अंदर भी आप देखें, आयशा, फातिमा, जितने भी नाम होते हैं, खदीजा, कुबरा, जितने भी गोलता मोस्टली जो होते हैं गोलता पे खत्म होते हैं, और उसको फिर गोलता को क्या करते हैं, हा में चेंज कर देते हैं। आयशा तू लिखा जाता है, गौर से सुनिए एक एक बात को, ठीक है, उसको नोट भी करें। आयशा तू लिखा जाता है। अब मैंने तुन क्यों नहीं लिखा, बताइए, कोई बताएगा आयशा तुन क्यों नहीं लिखा गया? तनवीन ये क्यों गैर मुनसरिफ नाम है, औरतों के, अरबी औरतों के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं। हाँ, ये औरतों का नाम है, औरतों के नाम पे तनवीन नहीं डाली जाती, एक पेश डाली जाती है, ठीक है। और ये क्या है, मुअन्नस नाम है, फेमिनाइन का नेम है। मोस्टली जो होते हैं ना 95% वो गोल ता के साथ ही होते हैं। जो बाकी 5% नाउन होते हैं वो फेमिनाइन होते हैं, बट वो बगैर गोल ता के होते हैं। मसलन आप देखें तो उम्मुन आ जाता है सबसे पहले तो, अब इसमें गोल ता नहीं है, बट दिस इज फेमिनाइन। बिनतुन, उख्तुन, अब इनमें गोल ता तो नहीं आ रही, बड़ी ता आ रही है ना, तो ये क्या है, ये आपके फेमिनाइन है, बट इनमें गोल ता नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पर यही बताया गया। अब नोट पढ़ लें अगला वाला। Note number 1, we have learned that the tanween is the indefinite article. For example, baitun, इसको a house, a house. This rule does not apply to proper noun. So hamidun is just hamid, not a hamid. समझ आई बात आपको? हाँ, समझ आई आपको बात, बताइए जरा। इसको सिर्फ हामिद नहीं, जैसे बैत के साथ हमने जब पढ़ा था बैतुन, तो उसको हमने ट्रांसलेट किया था आ हाउस, एक घर, आ हाउस। जब हमने हामिद को पढ़ा, हामिदुन, तो उसको हमने ट्रांसलेट किया हामिद। इसको हमने आ हामिद ट्रांसलेट नहीं किया, सिर्फ हामिद किया, सिर्फ हामिद किया। तो आपने अपने सेंसेस यूज करने हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह आपको एक मैं वर्ड और बताती हूँ। एक तो आपने क्या करना है, बैतुन आएगा तो आपने क्या कहना है, कलमुन आएगा, बैतुन आएगा, कुर्सीयुन आएगा, तो आपने आ का मीनिंग लगाना है, ठीक है। आ का मीनिंग कहाँ से आता है, इस तनवीन से, इस नून साउंड से आ रहा है। बैतुन, ये जो साउंड आ रही है ना, इससे नून साउंड जो आ रही है, इससे आ का मीनिंग लिया जाता है। तो ये तो हाँ, यहाँ पर भी तो आ रही है हामिदुन, नून किस, बट यहाँ पर चूंकि ये आपका प्रॉपर नाउन है, तो इसमें आप आ हामिद नहीं कहेंगे। सीधी सी बात आपको समझ आ रही है कि हामिद कहते हैं, आ हामिद नहीं कहते, तनवीन भी आती है फिर भी नहीं। इसी तरह आप देखिए एक और वर्ड है जो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जैसे जदीदुन है। अब इसका मीनिंग, इस पे भी तो तनवीन आ रही है ना, तो इसका मीनिंग क्या करेंगे, आ न्यू नहीं, सिर्फ न्यू करेंगे, सिर्फ न्यू करेंगे। क्यों करेंगे सिर्फ न्यू? क्योंकि सिफत है इसकी ना। हाँ, अच्छा, अपनी बारी पे बोलिए प्लीज, अभी इनको मैं आपको भी माइक देती हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या है, जदीदुन चूंकि एडजेक्टिव है, इसलिए इसका भी तर्जुमा हम आ में नहीं करेंगे। कदीमुन, जदीदुन, और बताइए कितने सारे एडजेक्टिव्स होते हैं ना, मकसूरुन, तो हम ये नहीं कहेंगे आ ब्रोकन,
تو ہم اس کا میننگ بھی نہیں، اس کا میننگ بھی میں نہیں کریں گے، حالانکہ اس پہ بھی تنوین ہے. صرف جو تھنگز ہوں گی نا، جو تھنگز ہوں گی، بیتن، ٹھیک ہے، قلم، کرسی، بولتے جائیے، سو آن، تو وہ ان کا تنوین آئے گی تو میں میننگ ہوگا. ایڈجیکٹو کا بھی نہیں ہوگا اور کوئی نیم ہوگا اس کا بھی نہیں ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. یہ ایک ایک پوائنٹ آپ اپنی کاپی میں نوٹ کریں اپنے ہاتھوں سے، ان اردو اپنی لینگویج میں، جو بھی آپ کی لینگویج ہے، جیسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایک ایک پوائنٹ کو. اگلا دیکھیے نیکسٹ نمبر 2. Feminine nouns have no tanween. For example, Aminatu, Zainabu, Fatimatu. تو ان کے آخر میں تنوین نہیں ہے. ہاں، جو فیمینن پراپر ناؤنز ہوں گے ان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرے پراپر ناؤنز ہوں گے مین کے، حامد، خالد، محمد، ان سب پہ تنوین آئے گی. تو جو لیڈیز کے ہوں گے ان کے اوپر ایک پیش آئے گی. تو یہ بات ہے. اب اس میں کیا چیز ہے، اس میں ایک یہ جو گول تا والے ناؤن ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ فیمینائن ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی مرد کے نام پہ گولتا آ گیا تو کیا وہ فیمینائن ہوگا؟ حذیفہ تو، حذیفہ. اب اس میں بھی گولتا آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ فیمینائن تو نہیں ہو گیا. اسامہ. تو اپنا مائنڈ آپ نے ہمیشہ اس کی کھڑکی کھلی رکھنی ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی ایکسیپشن آ سکتا ہے. اچھا آپ دیکھیں یہ مردوں کے نام ہیں لیکن ان کے اوپر تنوین نہیں آ رہی. حذیفہ تو کہہ رہے ہیں، اسامہ تو کہہ رہے ہیں، تم نہیں کہہ رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر گولتا آ رہی ہے. حمزہ، گولتا آ رہی ہے نا. حمزہ، حمزہ پہ میں کیا ہوتا ہے، حمزہ تو ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے نا، حمزہ تو. اب اس کے اوپر آپ نے یاد سے تنوین نہیں لگانی کیونکہ گولتا آئی ہے. تو اس کو ایسے ہی آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے سلوک، جیسے آپ نے فاطمہ کے ساتھ کیا، آپ نے عائشہ کے ساتھ کیا. عائشہ پہ گولتا آئی تھی، فاطمہ پہ آئی تھی. جو فیمینائن نیم تھے ان کے ساتھ جو آپ نے بیہیویئر رکھا وہی آپ نے یہاں رکھنا ہے. عائشہ تو تھا تو آپ کا حمزہ تو ہو جائے گا اسام. بٹ دیز آر میل ناٹ فیمیل، ناٹ فیمینائن، دیز آر میسکولائن نیم. اچھا آگے پڑھیے، ووکیبلری میں کیا ہے. اینا ویئر، علا آن، غرفتن روم، السماء اسکائی، الحمام باتھ روم، الفصل کلاس روم، المطبخ کچن، المرحاض ٹوائلٹ. یہ نیو ورڈ ہے میرے لیے بھی، المرحاض. جی جی نیو ہے. حمام تھا نا پہلے، حمام تو آپ نے پڑھا ہے نا پہلے. مرحاض جو ہوتا ہے نا، وہ جو گیسٹ روم ہوتا ہے نا، گیسٹ واش روم ہوتا ہے، وہ والا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ٹب نہیں ہوتا نا، تو جس میں ٹب ہوتا ہے اس کو باتھ روم کہتے ہیں. اچھا اچھا، جزاک اللہ خیر. فی ان. اچھا اب مجھے بتائیے اس میں کتنے حروف آئے ہیں اور کون کون سے ہیں. لیٹرز کون؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اسم، عربی میں صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں، اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے، بس یہ 3 چیزیں ہیں. اب مجھے بتائیے اس میں سے حرف جو ہیں کون کون سے ہیں. جی باجی میں بتاؤں؟ جن کے پاس مائک ہے وہی بتائیں، پھر میں دوسروں کو باری دیتی ہوں. ٹھیک ہے. علا حرف ہے، حرف ہے. فی حرف ہے، فی حرف ہے. مجھے لگتا ہے بس یہ 2 ہی حرف ہیں. 2 ہی حرف ہیں، ٹھیک ہے. اینا کو کس میں ڈالیں گی؟ It looks like حرف. استفہام میں ڈالیں گے. اسم نہیں، ہاں اس کے ساتھ، اس کو آپ اسم استفہام کہتے ہیں نا، تو اسم اس کے ساتھ آتا ہے نا، تو پھر یہ ناؤن میں جائے گا. جی ٹھیک ہے. یہ حرف جر ہے اللہ اور فی. تو آپ کیا ہے، حرف جر کو آپ کیا کہتے ہیں، حرف کہتے ہیں. اور اسم استفہام وہ آپ کا کیا ہے، وہ آپ کا اسم ہے. اچھا باقی غرفتن کیا ہے، حمام، المطبخ، ان کے اوپر الف لام آ رہا ہے. تو یہ کیا ہیں سارے، الف لام کے ساتھ یہ کیا ہیں سارے. غرفتن بھی آیا تنوین کے ساتھ، باقی جو ہیں وہ الف لام کے ساتھ آئے. تو یہ کس کیٹیگری میں جائیں گے؟ یہ اسما میں آئیں گے. اسم.
ऐना को भी हम इसमें डालेंगे और बाकी जितने नेम है गुरफतुन तनवीन वाला उसको भी इस कैटेगरी में डालेंगे और बाकी अलिफ लाम वाले भी इसी कैटेगरी। अब आपने नोट किया गुरफतुन पे तनवीन आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं अल गुरफतु लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, क्या फर्क है दोनों में? तनवीन गायब हो जाएगी, तनवीन गायब हो जाएगी फौरन, क्विकली। ठीक है, यहाँ पे तनवीन थी, यहाँ अलिफ लाम लगाया, तनवीन भाग गई, डिसअपीयर हो गई, एकदम आया। नकिरा से मारिफा हो गया। हाँ, नकिरा से मारिफा हो गया। ठीक है, तो ये अभी हम चीजें आहिस्ते से सीखेंगे, जितना भी आपको समझ आ रहा है उसको लेते जाएं। अच्छा, इसमें एडजेक्टिव कोई भी नहीं आया, कोई एडजेक्टिव था इसमें? देखें जरा, नजर मारें। नाउन जो होता है ना, नाउन के अंदर एडजेक्टिव्स भी आते हैं और नाउन के अंदर नेम भी आते हैं। कोई भी नहीं है। नेम और एडजेक्टिव दो अलग अलग चीजें हैं। नेम होता है किसी चीज का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, सो ऑन। ठीक है ना, किसी एनिमल का नाम, वो होता है नाउन। आपके अराउंड में जितनी भी चीजें हैं आपके पास में, उनका हर एक का एक नेम है। ठीक है, वो एडजेक्टिव नहीं है, वो नेम है इसमें वो। अच्छा, उसके बाद एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे आप देखें अपने पास में कोई चीज भी देखें, जैसे आपके पास सेल फोन आपका पड़ा है, ठीक है, सबसे मेन चीज जो होती है वो सेल फोन। अब सेल फोन जो है उसको, वो नाउन है, ठीक है, लेकिन वो ब्लैक है, वाइट है, वो जो है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। ठीक है, वो जो आप कहते हैं ना मेरा फोन काला है या सफेद है या फिर महंगा है या सस्ता है, तो वो जो आगे आप वर्ड लगाते हैं ना, वो एडजेक्टिव होता है। नाउन इटसेल्फ जो है वो आपका नाउन है। सेल फोन जो है वो इटसेल्फ आपका नाउन है। चलिए आगे चलते हैं, ये सारे नाउन थे, इनमें कोई भी एडजेक्टिव नहीं था। मुझे एडजेक्टिव की एक दो मिसालें दें आप जो माइक पे हैं। जी, कदीमुन, रखीसुन, वेरी गुड। समीनुन, समीनुन, वेरी गुड, माशाल्लाह। बतीउन, बतियातुन। हाँ ठीक है, अब बतियोन का मीनिंग भी आप बता दें। स्लो। अच्छा, तो ये रखीसुन क्या होता है? ये होता है आपका चीप। सही है, तो ये जो वर्ड हैं चीप या आपने जो जो बताए अभी, ये सारे एडजेक्टिव हैं क्योंकि इनके अंदर सिफ्त पाई जाती है। ये किसी चीज के नाम नहीं है, रखीस किसी चीज का नाम नहीं होता है, सिफ्त होती है। ठीक है, इसी तरह आपका न्यू 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 के लिए क्या होता है? जदीदुन, तो ये आपकी एडजेक्टिव है। और इसका मैंने बताया तनवीन के बावजूद इसका मीनिंग आ में नहीं करेंगे, आ नहीं लगाएंगे। ठीक है, आ नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे नया, महंगा, सस्ता, पुराना, काला, सफेद, ये सब एडजेक्टिव, उनके साथ आ नहीं लगेगा। तनवीन आती है फिर भी आ नहीं लगेगा। इसी तरह से आपका हामिदुन, उसामा तू पे तो तनवीन है ही नहीं, उसको तो छोड़ दें। खालिदुन, इनका भी आ में तर्जुमा नहीं होगा, सिर्फ खालिद होगा। ठीक है, हामिद होगा। और जो बाकी ये नाउन है जितने भी हैं, इनके ऊपर अगर तनवीन आ रही है तो यहाँ गुरफत, उनका मीनिंग क्या होगा? आ रूम, आ रूम, तनवीन आएगी तो आ रूम। चले, अब हम आ जाते हैं लेसन नंबर 5। आज का हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह। अब मैं नेक्स्ट सिस्टर को देती हूँ, आप थोड़ा आराम कर लें, जज़ाकिल्लाह खैर। और लेसन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। कौन आएगा? हैंड रेस किसी का भी नहीं है। अलीना अपने बच्चों को भेजें जल्दी से। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चलिए जी, एक सिस्टर जो है वो पढ़ेंगी, दूसरी ट्रांसलेशन करेंगी। चलिए पढ़िए। साइदुन अकिताबु मुहम्मदिन हाजा या यसीरु। Where is आ मीन्स क्या होता है? आ का मतलब is, या उर्दू में क्या होता है? क्या। ठीक है ना, क्या। ये क्वेश्चन के लिए ना, क्वेश्चन मार्क का है, तो क्या। अच्छा, किताबु मोहम्मदिन, किताबु मोहम्मद का मीनिंग, हाँ, is, हाजा मीन this is this, मोहम्मद, बोले ना, बोले
Muhammad's book. Muhammad's book. O Yasir. ओ यासिर. आपका यसीर क्यों नहीं ठीक हो रहा अभी तक? रोज आपकी मामा भी आपको बताती है, मैं भी बताती हूँ, यसीर नहीं होता, यासिर. ठीक है, आपका एक्सेंट थोड़ा इस तरह का है ना यूके वालों का. अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इज दिस मुहम्मद्स बुक? मुहम्मद्स बुक. ओ यासिर. ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? किताबु मुहम्मदिन. दोनों वर्ड मिला के पढ़ लेना. तो ये आपका क्या है? कंपाउंड बन रहा है. हाँ, मुरक्कब इजाफी बन रहा है. मुहम्मद्स बुक. पॉजिटिव ही ऐसा आ रहा है. मुहम्मद के ऊपर पॉजिटिव ही ऐसा आएगा. और आगे क्या है? मुहम्मद्स बुक या द बुक ऑफ मुहम्मद. दोनों सूरतों में लिख सकते हैं. और उर्दू में क्या कहेंगे? मोहम्मद की किताब. मोहम्मद की के का तर्जुमा जब आता है तो वो मुरक्कबे इजाफी होता है. मुरक्कबे इजाफी यानी पोजेसिव केस. पोजेसिव का मतलब होता है पोजेशन. तो किताब किसकी पोजेशन में है? मोहम्मद की पोजेशन में. मोहम्मद्स बुक. इसी तरह किताबुल्लाही. अब ये कौन सा मुरक्कब है? किताबुल्लाही. ये भी मुरक्कबे इजाफी है. जब भी आप देखें फर्स्ट वाले नाउन के ऊपर, दोनों नाउन है, फर्स्ट वाले नाउन के ऊपर आपकी क्या है? तनवीन नहीं है. तो आप समझ लें कि जो है ये मुरक्कबे इजाफी बनेगा. फर्स्ट वाले नाउन पे तनवीन ना आए तो वो क्या होता है? वो आपका मुदाफ होता है. वो आपका मुरक्कब इजाफी बन रहा है, पोजेसिव केस. आगे पढ़िए. Yasir la hadha kitabu Hamidin. No, this is Hamid's book. This is Hamid. This के बाद is लगाना जरूरी है. ठीक है. और फिर किताब हामिद्स बुक. No, this is Hamid's book. नहीं, ये हामिद की किताब है. ये भी आपका क्या है? कौन सा वाला है? ये भी पोजेसिव केस है. ठीक है. किताबु हामिदिन, हामिद्स बुक, ये पोजेसिव केस है. पोजेसिव केस का मतलब क्या है? कि किताब किसकी पोजीशन में? हामिद की पोजीशन में. चलिए आगे. Sa'idun, aina kitabu Muhammadin? Where is Muhammad's book? Yasirun, huwa tahta al-maktabi hunaka. Hunaka. It is under the table. It is under the table. There. हुना का क्या मीनिंग है? There. ठीक है. There. दूर है ना थोड़ी. There. अगर पास में हो तो क्या कहते हैं? पास में कोई चीज हो तो हुना. Here के लिए क्या? हुना. अच्छा जी, अब इसमें कोई क्वेश्चन है? मुझे ये बताएं कि ये कौन सी एंडिंग है? अगर आपने शुरू से क्लास लिया तो ये कौन सी एंडिंग है? 2 दम्मा आ जाए लास्ट लेटर पे या 1 दम्मा आ जाए? किताबू. क्या कहेंगे इसको? इस नाउन को क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आपने ज्वाइन ही नहीं किया शुरू से. मैं दोबारा बता देती हूँ. आप जल्दी आया करें क्लास में. क्लास तो लेनी ही होती है. 1 घंटे की क्लास है. आप देर से आएंगे तो मिस करेंगे क्लास को, फिर रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी. अगर लास्ट लेटर पर 1 दम्मा या 2 दम्मे आ जाए तो फिर वो क्या होती है? वो नॉर्मल एंडिंग होती है. नॉर्मल एंडिंग होती है. ओके. लेकिन ये वाली जो है ये नॉर्मल एंडिंग नहीं है. कसरा या फतह आ जाए, जैसे का पे फतह आ रही है, तो ये नॉर्मल एंडिंग नहीं है. नॉर्मल एंडिंग क्या है? ये भी नॉर्मल एंडिंग नहीं है. नॉर्मल एंडिंग क्या होगी? जब जैसे अल किताबू पे 1 दम्मा आ रहा है. ठीक है. 1 दम्मा आ रहा है तो ये नॉर्मल एंडिंग है. और इसी तरह साईद उन पे तनवीन आ रही है तो ये नॉर्मल एंडिंग. ठीक है. अब ये चेंज कब होती है? जब पीछे से कोई हर्फ जर आ जाता है. मसलन मैं किताब के पीछे क्या लगाऊं? फी लगा दूं. तो अब ये नॉर्मल एंडिंग जो है इट विल चेंज. तो ये क्या हो जाएगा? फिल किताबी. तो ये बच्चों को समझाना है. ठीक है. ठीक है लीना? जी जी. हाँ, तो आपको समझ आई बात. नॉर्मल एंडिंग क्या है? ऊ एंडिंग जो है और नॉर्मल एंडिंग है. यानी 1 दम्मा आएगा,
यू का मतलब होता है, यहाँ पे जो बुक्स में यू का मतलब है वो दम्मा है, पेश है, ठीक है। जी वो किस में चेंज हो जाएगी, आई एंडिंग में चेंज हो जाएगी, जी ओके ठीक है ना, कसरा में चेंज हो जाएगी। जी जी तो यहाँ पर देखें, किसी कोई भी नाउन आप देखेंगी ना तो उसके ऊपर दम्मा भी आ सकता है, कसरा भी आ सकता है और फतह भी आ सकती है ना, होता है ना। हाँ हाँ जैसे आप कसीरन पढ़ती हैं ना, तो कसीरन में क्या होता है, हमदन कसीरन, तो अब इसमें क्या है, आपके फतह आ रही है, ठीक है। जी जी ये भी नॉर्मल एंडिंग नहीं है, और कसीरिन वो भी नॉर्मल एंडिंग नहीं है, दो जेर भी आएंगे तो, ठीक है। जी जी अब ये क्या है, कसीरुन जब आएगा ना तो वो आपकी नॉर्मल एंडिंग होगी। ओके और ये कहाँ पर आती है नॉर्मल एंडिंग, लास्ट लेटर पे आती है, ठीक है। ओके जी तो जी जो नॉर्मल एंडिंग वाले होंगे वर्ड उनको हम कहेंगे मरफू, मरफू, ठीक है। मरफू कभी ये वर्ड सुना है मरफू? सुना है पर अभी पता चल रहा है इस समय हाँ, क्या है। तो ये नॉर्मल एंडिंग होगी तो आप कहेंगे मरफू है। ओके इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉर्मल एंडिंग तो कहेंगे ही, ये नॉर्मल एंडिंग है, आप मरफू भी कहेंगे, लेकिन इसको नॉमिनेटिव केस कहेंगे, ओके यानी हाँ, क्योंकि तनवीन क्या होती है, नाउन की साइन होती है, जी जी ठीक है। ये भी आपकी नाउन की साइन है, साइन है, ये भी है तनवीन, बट ये नॉर्मल एंडिंग नहीं है। और ये कब आती है, जब पीछे से कोई आ जाता है, कोई वर्ड आता है, जैसे आपका अल किताबू से फिल किताबी हो गया, ठीक है। जी जी अच्छा, जैसे यहाँ पर आप देखिए तो ये नॉर्मल एंडिंग क्यों चेंज हुई है, अल मकतबू से अल मकतबी क्यों चेंज हुई है, कि पीछे से ये आ गया, एडवर्ब आ गया, जी जी दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं। अगर अकेला होता तो अल मकतबू होता ना, जी जी लेकिन क्या हुआ, पीछे से जब ये वर्ड उसके साथ मिला के पढ़ा तो उसकी नॉर्मल एंडिंग चेंज हो गई, सही। तो जी नॉर्मल जी एंडिंग ऐसी नहीं चेंज होती, उसकी कोई रीजन होती है, जी तो वो कसरा में चेंज होता है वर्ड। और इसका कुछ नेम है जो नॉर्मल एंडिंग जो अभी चेंज होता है इसका हाँ इंग्लिश ना, में? हाँ, तो नॉर्मल एंडिंग का मैंने बताया वो होता है आपका क्या, मरफू, मरफू, ठीक है। जी जी और अगर ये कसरा आएगा, कसरा आएगा, जैसे फिल किताबी में कसरा आ गया, तो उसको जी हम कहेंगे मजरूर। मजरूर हाँ, मजरूर, इसको लिख लें फिर याद हो जाएगा। जी इसको मैं लिख हम रही हूँ। इसको तो इंग्लिश में क्या होता है? आप शुरू से क्लास में नहीं आई, हमने आपने सब शुरू से लेक्चर सुनना है, जो शुरू से हमने पॉइंट्स टू रिमेम्बर बताए पढ़े हैं ना, उसमें जी बहुत अच्छी तरह से डिटेल बताई हुई है, ठीक है। चलिए ठीक है मैं उसमें से नोट डाउन कर लूंगी हाँ, उसमें अगर नॉर्मल एंडिंग नहीं है तो उसको कहेंगे मजरूर। जी कसरा आ रहा है तो कहेंगे मजरूर, दम्मा आ रहा है एंड पे तो उसको कहेंगे मरफू, और जबर आ रही है जैसे यहाँ पे तो ये है मनसूब। मनसूब, ये तीन वर्ड होते हैं बस, मरफू, मनसूब, मजरूर, तीनों मीम से शुरू हो रहे हैं, मरफू, मनसूब, मजरूर। मजरूर कौन सी एंडिंग होती है, जिसमें कसरा आता है। मरफू कौन सी आती है, लास्ट लेटर के नीचे। मरफू कौन सी होती है, जिसपे दम्मा आता है, एक दम्मा या दो दम्मा, ठीक है, एक या दो एक या दो, दोनों होंगे तो मरफू होगा। अच्छा, मंसूब कब होगा, जब एक जबर होगी या दो जबर हो, जी तो वो आपकी मंसूब, यानी आपकी, इसको एक्यूजेटिव फॉर्म कहते हैं इंग्लिश में, और ये मंसूब हो जाता है, ठीक है। तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह चीजें क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करें 5 मिनट पहले सब क्लास में आ जाया करें, मैं बिल्कुल राइट टाइम पे क्लास शुरू करती हूँ। इंशाल्लाह। तो आप लोगों की तरफ से क्यों देर होती है, मुझे समझ नहीं आती। आपको शौक नहीं है तो छोड़ दें। नहीं एक्चुअली आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इमरजेंसी में जाना है, तो मैं उसका अपॉइंटमेंट बनाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही, तो चलिए बैठ गए थे पर वो बात नहीं कर पा रहे थे। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं फोन में तो कोशिश करें कि आप क्लास में वक्त पे आ जाएं। कोई एक्सक्यूज है तो वो लेम एक्सक्यूज ना बनाए, अपने आप को खामखा की चीजें ना दें कि नहीं चली जाऊंगी ना, क्या हुआ, अभी तो शुरू भी नहीं हुई होगी, ऐसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह चले, मुझे पता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है अभी, यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, चलिए अभी पढ़िए सिस्टर, एक जुमला और पढ़ लें आप लोग दोनों बहनें। Saridun, Aina Kitabu Muhammadin. Where is Muhammad's book?
كثير هو تحت المكتب هناك. It is under the table there. हाँ, हुआ का मीनिंग क्या करेंगे? इट क्यों करेंगे? ही क्यों नहीं करेंगे? Because it's not living. It's not a person. It's not a person. It's not a person. It's a thing. ठीक है ना? It's a thing. Thing और animal दोनों के लिए it आएगा. जी. पर्सन के लिए सिर्फ आपका ही और शी आएगा. तो इट किसके लिए आएगा? एनिमल्स के लिए भी आएगा. अच्छा, इसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का मैटर नहीं है. इसमें यह है कि पर्सन और नॉन पर्सन का मैटर है. तो किताब क्या है? ये नॉन पर्सन है, तो इसमें आपका इट आएगा. अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर आपका कौन सा एंडिंग है? ये इसको क्या कहेंगे? मरफू, मंसूब और मजरूर. मजरूर कसरा होगा तो मजरूर. मैं बोलती रहूंगी, आप इसकी नॉर्मल एंडिंग क्या है? एक दम्मा. हाँ, नहीं तो उसको क्या बोलते हैं जिस पर एक दम्मा होता है या दो दम्मे होते हैं? मरफू. मरफू बार बार बोलना है, ठीक है. और मोहम्मद दिन में आप देखें नॉर्मल एंडिंग क्या है? ये इसमें कौन सी एंडिंग है? मजरूर. मजरूर. तो मजरूर और मरफू अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, अभी आपको मंसूब नहीं पढ़ाया जा रहा. लेकिन जैसे तहता है ना, अब तहता पे क्या है? न कसरा है न दम है, तो उसको क्या कहेंगे? मरफू भी नहीं है, मजरूर भी नहीं है, तो क्या कहेंगे? मंसूब है. मंसूब. तो ये तीन वर्ड आप सबने याद रखने हैं. जबर होगी, दो जबर होंगे तो मंसूब, एक कसरा या दो कसरे होंगे तो मजरूर, और अगर एक दम्मा होगा या दो दम्मे होंगे तो मरफू. ये तीन बातें आप याद रख लें, बस खत्म जी. बाकी सब भूल जाए. मरफू एक दम्मा दो दम्मे, मंसूब एक फता दो फता, और मजरूर एक कसरा दो कसरा. जी. तो ये आपका कहाँ पे होना चाहिए? लास्ट लेटर पे होना चाहिए. जी. अब यहाँ पे ता पे फता आ रही है तो आप इसको देख के नहीं कहेंगे कि ये मंसूब है. नहीं, ये नहीं कहेंगे. लास्ट लेटर की हरकत के लास्ट लेटर. बिल्कुल लास्ट लेटर. इसको एराब कहते हैं, अरबी में एराब कहते हैं. ओके. वो आपको बाद में याद करूंगी, अभी मरफू मंसूब मजरूर याद रखें, ठीक है जी. ये एंडिंग होती है ना, इसको इंग्लिश में अरबी में एराब कहते हैं. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जिनको समझ आ रही है वो एराब. और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अरबी जुबान में, ठीक है. ये कसरा क्यों आ रहा है आपको पता होना चाहिए. फता क्यों आ रहा है, दम्मा क्यों आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए. रीजन भी पता होना चाहिए. एक तो इसका नाम पता होना चाहिए, मरफू है, मंसूब है, मजरूर. दूसरा ये क्यों आ रहा है, नॉर्मल एंडिंग क्यों चेंज हो गई है, वाई. तो पीछे कुछ ना कुछ आएगा तो नॉर्मल एंडिंग चेंज होगी. नॉर्मल एंडिंग क्या है अलीना? नॉर्मल एंडिंग जिसपे मरफू आता है. एक दम्मा या दो दम्मे, वो आपकी नॉर्मल एंडिंग है. वो कसरा में चेंज होती है या फता में चेंज होती है, वो क्यों हो रही है, वो आपको रीजंस बताई जाएंगी. जी. वहाँ स्पेसिफिक वो कुछ कंप्लीट वर्ड नहीं होती है ना. नहीं, अभी जैसे देखिए ना, अल किताबू की नॉर्मल एंडिंग अल किताबी क्यों हो गई? क्योंकि पीछे क्या आ गया? अल आ गया. नहीं, अल नहीं आ गया. फी आ गया. अल की वजह से भी चेंजिंग आती है, लेकिन वो तनवीन चेंज हुई है ना एक दम्मे में. जी. जी. लेकिन ये जो नॉर्मल एंडिंग चेंज हुई है ना, वो तो पहले दो दम्मे थे, फिर एक दम्मा हो गया अलिफ लाम की वजह से. जी. जी. तो अडवर्ब आ जाती है साइड में. तो पहले वो चेंज तो नहीं हुआ ना, कसरा या फता में चेंज तो नहीं हुआ ना, वो तो नॉर्मल एंडिंग ही है, चाहे एक दम्मा आए दो. लेकिन जब आपका हर्फ जर आ जाता है तो नॉर्मल एंडिंग चेंज हो जाती है. और वो क्यों? बिकॉज ऑफ दिस हर्फ जर. तो हर्फ जर जब चेंज करेगा तो वो जेर देगा, तो फिर हम कहेंगे मजरूर. जर से मजरूर. और ये क्या है? पहले क्या थी आपकी? ये नॉर्मल एंडिंग मरफू. ठीक है जी. जी. इसी तरह अगर किसी वजह से जबर आ जाती है यहाँ पे, तो फिर आप कहेंगे मंसूब. मसलन मैं बताती हूँ, अल किताबू है और पीछे क्या आ गया? एक लेटर आ गया जो आपको इसको जबर दे रहा है. मतलब मैं लगाती हूँ इन्ना.
इन्नल किताबु, अब इन्नल किताबु नहीं होगा, किताबु तो पहले था ना। जी जी, इन्नल किताब, किताबी, नो, हर्फ जर आएगा तो कसरा आएगा, मजरूर होगा। जब इन्ना आएगा तो वो जबर देगा, जबर देगा, इन्नल किताबा हो जाएगा। अब ये मंसूब हो गया, इसकी नॉर्मल एंडिंग मंसूब हो गई। तो हर लेटर जो होता है वो डिफरेंट एंडिंग देता है। इन्ना वगैरह जो होते हैं, जैसे आप देखें कुरान मजीद में आता है ना, अल्लाहू, है ना, अल्लाहू आता है, और अल्लाहू अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाहू अला कुल्ली शैइन कदीरुन। अब जब यहाँ पे इन्ना आता है, पीछे अल्लाहू से पहले इन्ना आ जाता है, तो क्या हो जाता है, इन्नल्लाहू नहीं रहेगा अभी, इन्नल्लाह। हाँ, तो आपको ये जुमला याद है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर जी, हाँ, तो ये मिसाल याद रख लें। इंशाल्लाह। अगर इन्ना नहीं होगा तो अल्लाहू नॉर्मल एंडिंग है, ठीक है। और जी, जब इन्ना लगाएंगे तो इन्नल्लाह हो जाएगा, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो बस इतनी सी बात है। तो आपकी ये वाली क्या है, ये मंसूब है, अल्लाहू था तो वो आपका दम्मा था, तो वो आपकी मरफू था। और जब आपका जैसे आप देखिए अल्लाह के पीछे आप लगा दें, ली लगा दें। अब ली लगाने से क्या होगा, अब ली जो है हर्फ जर है, अभी आप पढ़ेंगे, शायद आपने पढ़ा नहीं है अभी। ली जो होता है ये हर्फ जर है, जैसे फी है, मिन है, अला है, इला है। आपने पढ़ा है लीना ली, लिल्लाही, ली पढ़ा है आपने? ली मोहम्मद दिन पढ़ा है के ना? लिए होता है ना, के हाँ, ली के लिए हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम अल्लाहू पे ली लगाते हैं तो क्या बन जाता है, अल्लाह के लिए, नहीं फिर नहीं, लिल्लाह, लिल्लाही हो जाती है, तो क्या हो गया, ली ने हर्फ जर ने क्या कर दिया, इसको मजरूर कर दिया, ही कर दिया, हाँ मरफू से मजरूर कर दिया। जी। तो अगर कोई कुछ भी पीछे नहीं होगा तो नॉर्मल एंडिंग आएगी। जब पीछे से कुछ भी आएगा, हर्फ जर आएगा, जैसे ली आ गया तो वो कसरा देगा, इन्ना आ जाएगा तो वो जबर देगा, ठीक है। जबर होगा तो मंसूब, जेर होगा तो मजरूर, और अगर दम्मा होगा तो मरफू। अब इससे ज्यादा जो है ना, मैं आपको क्या बताऊं, तो इन चीजों को नोट जब तक अपने हाथों से नहीं, हाँ, कहीं भी बैठे हैं, डॉक्टर के ऑफिस में बैठे हैं, कुछ भी करें, एक कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, जो चीजों को नोट करें। पता है मैं सफे के सफे काले करती थी, मेरे हफ्ते के बाद मेरी बास्केट भरी होती थी, जो चीजें मैं लिख लिख के फेंकती थी और लिखती थी, भले बाद में फेंक दूं, लेकिन मेरे दिमाग में वो क्या हो जाता था, सब्त हो जाता था। वो अंदर चीजें वो हैं जो आपके दिमाग में आ जाए, वो लिखने से आती हैं। जी, हवा में बातें करने से नहीं आती, उसको आपको लिखना होता है, जो मैंने बताया। भले रिकॉर्डिंग दोबारा सुने, बार बार सुने। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाए, नूर भी है, नूर आएंगे आप, आईफोन पे हैं नूर। अच्छा ये आइए आइए, घबराइए नहीं। चले, परवीन आप आ जाएं, आपने अभी तक नहीं पढ़ा, कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक पढ़ूंगी। अच्छा अच्छा, आपको समझ आ रही है मैं बता रही हूँ, ज्यादा तो नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ये मजरूर है, इसको आप मजरूर कहेंगे। नाउन है ना, तो नाउन की 3 टाइप्स होती है, या तो वो मजरूर होता है, या वो मरफू होता है, या वो मंसूब होता है, बस, ठीक है। मरफू कब होता है, जब एक दम्मा आएगा आखिर में, 2 दम्मे आएंगे मरफू, एक दम्मा, एक कसरा या 2 कसरे आएंगे तो मजरूर, और एक जबर या 2 जबर आएंगे तो मंसूब। चलिए इसको तो हम रिपीट करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो रुखसाना यूसुफ आप आ जाइए, जल्दी माइक ले करें, यास्मीन का हैंड रेज है। जी जी हाँ चलें पढ़े, किसने पढ़ना है? सही से पढ़े। हाँ, नेक्स्ट टाइम जो हैंड रेज होगा ना, मैं उसी को बुलाऊंगी, ठीक है। अब भले आप क्लास में आए, बैठे रहे, आराम फरमाए, मैं नहीं बुलाऊंगी जब तक हैंड रेज नहीं होगा। हैंड रेज करना सीखें, सीखें, मुश्किल नहीं है, मुझे भी कुछ नहीं आता था, ठीक है।
करने से आता है। चलिए वो मेरा नेट आज बहुत तंग कर रहा है ना, बार बार निकले जा रही हूँ क्लास से। जी किसका ये? सईद चलिए रुखसाना। रुखसाना, अच्छा चलिए पढ़िए। सईदुन ऐन दफ्तरु अम्मारिन। सईद ऐन दफ्तरु अम्मारिन। अम्मार जो है वो दफ्तर में है। दफ्तर का मतलब दफ्तर उर्दू वाला दफ्तर नहीं है ये, इसको दिमाग से बिल्कुल निकाल देंगे, ये उर्दू वाला दफ्तर है। इसका मतलब होता है कॉपी, कॉपी जो होती है ना आपकी वो। अच्छा ये हाँ नोटबुक, ये अम्मार नोटबुक अम्मार की है। दफ्तरू अम्मार का मतलब होता है अम्मार की कॉपी। ऐना का मतलब क्या होता है? ऐना किसकी? कहाँ, 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 वेयर, ठीक है ना? तो कहाँ है? अम्मार की कॉपी कहाँ है। इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, आफ्टर हर क्लास की इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। ऐना का मतलब है वेयर। जब तक शौक नहीं पैदा करेंगे, पैशन नहीं लाएंगे, कुरान की जुबान नहीं समझ सकते। हर चीज की कीमत होती है ना, हर चीज की कीमत होती है, वो अदा करनी पड़ती है। तो ऐना क्या है? वेयर है, ठीक है। और दफ्तर व अम्मारिन, अमार की कॉपी कहाँ, और है का लफ्ज हम अपनी तरफ से लगाते हैं, है के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, है हम जुमला कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से लगाते हैं। वाहिद है ना, तो हाँ चलिए आगे। यासिर कह रहे हैं यासिरुन हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी। हुआ अलल मक्तबिल मुदर्रिसी, पढ़िए। यासिर कह रहे हैं कि वो मतलब मेज पर रखी है मुदर्रिस के। हाँ वो टीचर के मेज पर है, ये रखी है, बाकी को छोड़े। हुआ का मतलब है वो टीचर के मेज, टीचर की मेज पर है। अल्लाह का मतलब पर है, पर, ठीक है। मक्तबिल, मक्तब क्या होता है? मेज, मेज, ठीक है। और मुदर्रिसी का मतलब क्या है? टीचर, उस्ताद, उस्ताद, ठीक है ना। वो उस्ताद के मेज पर है। उर्दू में बोलेंगे उस्ताद और अरबी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो टीचर, ठीक है। आगे चलिए। सईदुन कलमु मन हाजा या अलियु। कलमु मन हाजा, हाजा का मतलब क्या होता है? इशारा है ये। हाँ मीनिंग क्या है? ये, ठीक, ये। कलमु मन, कलमु मन किसका पेन? हुज पेन, हुज पेन। कलमु मन का मीनिंग क्या है? हुज पेन, किसका पेन? हाँ, हुज पेन इज दिस, ठीक है। ओ अली, हम पूछते हैं ना, पेन पढ़ा हो तो हम पूछते हैं ना कलमु मन हाजा या अलीयु। और अगर अली मौजूद नहीं है तो कलमु मन हाजा, किसका है? ओ अली, ओ अली, ठीक है। अली ये पेन किसका है? जैसे हम कहते हैं ना या अल्लाह, या अल्लाह का क्या मतलब होता है? या अल्लाह का मतलब क्या होता है? ओ अल्लाह। हाँ ओ अल्लाह इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में भी ओ ही कहते हैं, ओ अल्लाह। ए अल्लाह भी कह सकते हैं ना, ए अली। हाँ उर्दू में ए कहेंगे, इंग्लिश में ओ कहेंगे। चलिए अलीयुन, अली कह रहे हैं कि ये हाजा कलमुल मुदर्रिसी, ये कलम टीचर का है, उस्ताद का है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है आपको, ठीक है। आगे पढ़िए ये वाला। सईदुन ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी। हकीबा मतलब? हकीमा मीन ये नीचे पड़ा है ना, बेड टेबल के नीचे, क्या है ये? नजर आ, बैग, बैग। बैग। ऐना का मतलब क्या है? ऐना भूल गई है ना, कभी आपने बताया कहाँ, कहाँ, वेयर, ठीक है, कहाँ। हकीबतुल मुदर्रिसी दोनों को मिला के पढ़ेंगे, तर्जमा भी मिला के करेंगे। टीचर का बैग, टीचर का बैग कहाँ है? बहुत आसान है, अपनी तरफ से लगा दें, कहाँ है। अच्छा आगे नंबर, हिया
अलीयुन हिया तहतल मकतबी, वो मेज के नीचे है। हाँ, तहता का मतलब होता है नीचे, ठीक है, नीचे और है मकतबी, हाँ, मेज के नीचे है, ठीक है। अब तहतल इंग्लिश, मकतबी। उर्दू में तो इसका मीनिंग वो करेंगे ना, वो है ना, लेकिन इंग्लिश में इसका मीनिंग इट करेंगे। इट क्यों करेंगे? क्योंकि ये बेजान चीज है, बैग जो है बेजान चीज है ना, तो इट करेंगे। इट है या IT इट है ना ये? हाँ, IT इट है, और क्या। अच्छा, गैर ये आकिल है ना? गैर आकिल के लिए इट आएगा, और पर्सन के लिए ही आएगा, वो आएगा, ही आएगा। चलिए यास्मीन, आप आ जाइए, सवालों के जवाब करने हैं अभी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तमारीन, ओके, तमारीन एक्सरसाइजेस। अजीब अनिल असइलतिल आतियती। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइना किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? ओके, किताबुल मोहम्मदी, नहीं, हाँ सही ना। इन दोनों की जगह आप क्या लगाएंगे? किताब की जगह आप क्या लगाएंगे? किताब मोहम्मद की जगह हुआ लगाएंगे, ठीक है। किताब मुजक्कर होती है तो आप हुआ लगाएंगे, ठीक है। हुआ अलल मकतबी, अलल मकतबी, वो टेबल पर है, ठीक है ना। ऊपर कोई चीज हो तो अला कहते हैं, नीचे हो तो वो क्या कहते हैं? तहता, तहता, है ना। और अल्लाह ने क्या कर दिया? अल मकतबू को अल मकतबी में मजरूर कर दिया, सही है। चलें, अब ऐना किताबु अम्मारिन, आइना किताबु अम्मारिन, ये भी सेम हो जाएगा ना फिर सेंटेंस। जवाब दीजिए। हुआ अलल मकतबी, अच्छा, वो भी मकतब पर है ये। वो अलल कुर्सी, नहीं, अलल कुर्सी, अलल सरीरी, वो टीचर के टेबल पर है। ओके, हुआ अलल मुदर्रिसी, अलल मकतबी, हुआ अलल मकतबिल मुदर्रिसी। अच्छा, अब इसमें गलती है, मैं बताती हूँ आपको क्या गलती है। अलल मकतबिल मुदर्रिसी, कौन बताएगा इसमें क्या गलती है? ये जो मिडल में लिखा गया है इसमें गलती है, कौन आइडेंटिफाई करेगा इसको? यहाँ पर जो है ना, ये मिडल में जो आता है ना नून, इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा सकते। अच्छा, इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, लास्ट वाले पे लगाएंगे जाके। अला मकतबिल मुदर्रिसी, तो अला मकतबिल मुदर्रिसी कहेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर मकतब लास्ट में आ रहा था तो अलिफ लाम लगाया था हमने, जी जी। यहाँ पर ये मिडल में आ रहा है तो हम नहीं लगाएंगे। मकतब अगर मिडल में आ गया है तो हम अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, अगर लास्ट में आएगा तो अलिफ लाम लगाएंगे। और इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे ये मुदाफ बन रहा है, और मुदाफ के ऊपर तनवीन भी नहीं आती और अलिफ लाम भी नहीं आता। ये मुदाफ बन रहा है, ये मुदाफिल है। टीचर्स टेबल मुरक्कबे इजाफी है, ठीक है। अब मुरक्कबे इजाफी का जो पहला वाला वर्ड होता है उसके ऊपर आप तनवीन भी नहीं लगा सकते और अलिफ लाम भी नहीं लगा सकते। जी जी। तो ये रीजन है कि यहाँ से मैंने अलिफ लाम को रिमूव कर दिया, बिकॉज दिस इज मुदाफ है। तो बाकी जितनी समझ आई है किसी को उतना ले ले, नहीं आई तो सर से हटा दे, बिल्कुल खत्म कर। जिसको समझ आ रही है वो ले ले कि यहाँ पे मैंने अल क्यों। बस जिसको नहीं आई वो ये समझ ले कि ये मकतब का लफ्ज आखिर में जाके आएगा तो अलिफ लाम आएगा, मिडल में आएगा तो अलिफ लाम नहीं आएगा। अला मकतबी, और ये कसरा क्यों आ रहा है? हर्फ जर अला की वजह से, अला की वजह से। यहाँ पर भी आया, यहाँ भी आया, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसको अला की वजह से आना ही आना है। दमा नहीं ला सकते, अलल मकतबू नहीं कह सकते। यहाँ पर भी अला मकतबी, यहाँ पे भी अलल मकतबी। चलिए आगे पढ़िए। आइना हकीबतुल मुदर्रिसी, टीचर का बैग कहाँ है? अब यहाँ पे कसरा क्यों आया है? मजरूर क्यों हो रहा है यहाँ पे? ये हो रहा है ना, क्या बोलते हैं, मुदाफ इलैहि की वजह से ना। हाँ, मुदाफ इलैहि है। ये वाला जो है ये मुदाफ है। इसकी क्या है कंडीशंस? इसकी कंडीशंस ये है, इसकी शर्त ये होती है कि इसके ऊपर तनवीन नहीं डाल सकते और अलिफ लाम भी नहीं डाल सकते।
لیکن اس کی نیچے اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ اس کی نیچے کسرہ آئے گا. جی تو جب یہ والی سچویشن ہو حقیبت المدرسی مدرس کا بیگ مدرس کی کتاب مدرس کی میز کی کا ترجمہ ہے ترجمہ کرتے ہوئے تو پھر وہ پوزیسو کیس ہوتا ہے مرکب اضافی ہوتا ہے. پوزیشن کی یہ گھر میری پوزیشن میں ہے یعنی میں اس کی مالک ہوں نا تو یہاں پر حقیبہ کس کی پوزیشن میں ہے مدرس کی پوزیشن میں. مدرس کی. اچھا کتاب اللہ ہی اب یہاں پہ کتاب کس کی پوزیشن میں ہے اللہ. اللہ کی. تو یہاں پر اللہ ہی کیا ہے اس کے نیچے زیر آئے گا اور کتاب کے اوپر کیا آئے گا ایک پیش آئے گا. کسرہ کیوں نہیں آئے گا زبر کیوں نہیں آئے گی یہ کسرہ مضاف ہے نا مضاف مرفوع رہتا ہے. نہیں مرفوع تو نہیں رہتا. یہاں پر آپ نے دیکھا مضاف کے اوپر آپ کا کسرہ بھی آیا تھا نا. ہاں مضاف کے اوپر کسرہ آیا تھا یہاں پہ مکتبی آیا تھا نا یہ بھی تو مضاف ہے نا تو یہاں کسرہ آیا. جی جی ہاں یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ کا پیچھے سے کچھ نہیں آ رہا اس کو ہٹانے کے لیے دمے نارمل اینڈنگ کو ختم کرنے کے لیے پیچھے سے کچھ نہیں آ رہا. جی جیسے ہی پیچھے فی لگائیں گے یا اللہ لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ آپ کا نارمل فی کتاب اللہ ہی ہو جائے گا. یہ آپ کا اس وجہ سے یہاں پہ آ رہا ہے کہ پیچھے سے کچھ چینج کرنے والا ہی نہیں آ رہا. اچھا جی اب یہ والے جملے ہو گئے. آئینہ حقیبت المدرسی اس کا آنسر دینا ہے. ہیا علی مکتب المدرسی. صحیح ہے ہیا علی المکتبی اٹ از آن دا انگلش میں ترجمہ کریں گے تو اٹ کریں گے اٹ از آن دا ٹیچرز ٹیبل. اور اردو میں تو وہ اردو میں بہت آسانی ہے سب کو وہ لگائیں پرسن ہے یا چیز ہے یا اینیمل ہے سب کے ساتھ وہ لگا دیں لیکن انگلش میں تھوڑا فرق کرنا پڑتا ہے اٹ اور اس کا. ٹھیک ہے نیکسٹ کون آنا چاہے گا ہینڈ ریز کرے گا کسی کو آتا ہے کرنا ریز چلیں ابھی ہم نے کرنا ہے یہ والا پڑھنا ہے نا تھوڑا سا میرے پاس 5 منٹ ہیں کلاس کے صرف مجھے اگلی کلاس لینی ہے پھر 15 منٹ تک لے سکتی ہوں. چلیں تو ہم نے یہ والا کرنا ہے تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ ری رائٹ دا 2 words in each group so that the second word is in the possessive form. 2 words آ رہے ہیں ایک کتاب آ رہا ہے اور ایک کیا آ رہا ہے محمد آ رہا ہے. ان دونوں کو آپ نے ملا کے لکھنا ہے ٹھیک ہے. ابھی ملے ہوئے نہیں ہے بیچ میں کوما آ رہا ہے سیپریٹ ہیں. ابھی ان کو جب ملائیں گے تو سیکنڈ والے کو کسرہ ملے گا اور پہلے والے کی تنوین جو ہے وہ ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے پڑھنے والے بہت یاسمین تھوڑا سا ٹائم دینا سب کو. تو یہاں پر ابھی جب ان دونوں کو ملائیں گے تو سیکنڈ والے کے نیچے کسرہ آ جائے گا اور پہلے والے کی تنوین ہٹ جائے گی. تو اس کا میننگ کیا ہو جائے گا کتابو محمد کا محمد بک. چلیں ابھی آئیے چلیں آ جائیں علینا کی بچی آ جائیں جو بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں. قلم حامد قلم حامد. گڈ. ہم قلموں کی تنوین کو ریموو کریں گے اس کو قلموں کریں گے کیونکہ یہ آپ کا مضاف ہے اس کے اوپر آپ کا تنوین نہیں آ سکتی. پہلا ورڈ جو ہوتا ہے مضاف الیہ کو بھول جائیں جو پہلا ورڈ ہے اس پہ تنوین نہیں لگا سکتے تو ہم اس کو چینج کریں گے ایک دمے میں. اور سیکنڈ والا جو ناؤن ہے اس کو ہم 2 دمے ہیں تو کسرہ میں چینج کر دیں گے 2 کسرہ میں چینج کریں گے. اگر ایک دمہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر تو پھر ہم ایک زیر لگائیں گے. چلیے آگے پڑھیے اس کا میننگ کیا ہوگا قلم حامدین حامد's pen. حامد's pen. نیکسٹ بیتون عباسن. بیتو عباسن. پہلے بیتن تھا اب کیا ہو جائے گا بیتو ہو جائے گا. نارمل اینڈنگ ہی آ رہی ہے لیکن ایک دمے میں چینج ہو جائے گا. بیتو عباسن یہاں پہ کسرہ آئے گا وہاں پر ایک دمہ ہو جائے گا. اس کا میننگ عباس کا گھر. عباس کا گھر عباس's house. آگے
غرفة علي. غرفة علي. علي. غرفة علي. Ali's In room. the room. Room. Ali's room. Next. دفتر سعيد. سعيد. اچھا ٹھیک ہے آگے بنائیے. دفتر سعيد. دن میننگ کیا ہوگا؟ Saeed's notebook. چلیں آگے. منديل ياسر. منديل ياسر. Yasir's handkerchief. handkerchief ٹھیک ہے. قميص أمار. قميص أمار. ہاں أمار shirt. امار شرٹ. آگے. سرير خالد. سرير خالد. اچھا کیا کریں گے ارم؟ کیا کریں گے ہم؟ سریرن کا جو تنوین ہے اس کو گم کر دیں گے، اس کے اوپر ایک پیش لگائیں گے، ٹھیک ہے. اور آگے خالدن کو ہم اس کی دمہ کو ریموو کر کے کسرہ میں چینج کریں گے، خالدن. تو یہ آپ کا پوزیسو کیس بن جاتا ہے. یعنی سریر کو کس سے، بیڈ کو کس سے نسبت ہے، کس کی پوزیشن میں ہے؟ خالد کی پوزیشن میں. تو یہ پوزیسو کیس بنتا ہے، خالد's بیڈ. ٹھیک ہے، خالد's بیڈ. اچھا جی ابھی آگے پڑھیے. کوئی اور آ جائے پڑھنا چاہ رہا ہے؟ ناصرہ. اچھا ناصرہ نے کہا نیکسٹ ٹائم. ناصرہ آپ آئیں گی مائک پہ؟ شبنم آپ آ جائیں. آپ لوگ کلاس کے ٹائم بالکل ریڈی ہو کے سیپریٹ ہو کے فیملی سے بیٹھ جایا کریں پڑھنے کے لیے. اگر آپ لوگ ناشتے میں اور کچن میں سن رہے ہیں تو پھر آپ پڑھ نہیں پاتے، یا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو پھر آپ نہیں پڑھ پاتے کیونکہ فیملی ہوتی ہے وہاں پہ. تو اس لیے آپ لوگ مائک بھی نہیں لے پاتے نا. جی جی پڑھیے. کون پڑھ رہا ہے؟ اکیلا پڑھیے. یہ والا کیجئے. یہاں پر بھی دو ورڈ ہیں، دونوں کو ملانا ہے. پہلے والے کا دمہ ہٹانا ہے، اس کو ایک دمے میں چینج کرنا ہے، اور دوسرے والے کو کسرہ دے دینا ہے. ایک کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک دمہ ہے، تو ایک دمہ ہوگا تو ایک کسرہ آئے گا. چلیے پڑھیے اکیلا، جلدی کیجئے. جب آپ کا نیٹ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ مائک مت لیا کریں. اچھا یہ نور کون ہے؟ نور کیوں نہیں آ رہی پڑھنے کے لیے؟ باجی میں ہوں سائمہ. سائمہ. جی سائمہ پڑھیے. جی میں تھوڑا سا بڑا کر رہی ہوں اس کو. میں مجھ تو آواز صحیح آ رہی ہے، نیٹ تو صحیح ہے. جی میری آواز آ رہی ہے باجی؟ ہاں پڑھیے سائمہ، آپ پڑھیے. جی مفتاح البیت. اکیلا آپ اپنا مائک میوٹ کیجئے، بعد میں پڑھاتی ہوں آپ سے. اکیلا مائک میوٹ کرے. شاباش. چلیے مفتاح اب کیا ہو جائے گا یہ؟ مفتاح البیت. تو اس کو وہ بنانا ہے پوزیسف، تو ورڈ ان دا پوزیسو. مفتاح البیت تو جو ٹو ہے نا ایک ہو جائے گی. اصل میں سوری مجھے قریب سے نظر نہیں آ رہی بالکل میری اسکرین میں، تھوڑا اور اس کو بڑا کر دوں. سوری کریں نا، تھوڑا سا بڑا کر دیں. جی جی یہ اگر دو پیش ہے تو ایک ہو جائے گی نا. ہاں تو ہو گئی. اب کیا ہوگا آگے؟ کیا ہوگا؟ مفتاح کر رہی ہے اور مفتاح البیت کو کیا کریں گے؟
अलबैती कर देंगे इसको। अलबैती कर यही देंगे। सेम रहेगा ना, सेम रहेगा। अलमै सेम कैसे रहेगा, मुरक्कब इजाफी बना रहे हैं, मिफ्ताहुल बैती। बैती, हाँ सही है, मिफ्ताहुल बैती, ठीक है, वो नीचे आ जाएगी, जेर आ हाँ जाएगी, ठीक है। हाँ, इसके नीचे हमेशा जेर आती है, ठीक है। अलिफ लाम आएगा ठीक तो है। एक जेर, अगर अलिफ लाम नहीं है तो दो जेर, ठीक है। 2 जेर, और ठीक है, इस हाँ पर जी। एक ही पेश आएगी, ठीक है। अब आप अगला वाला करें। अच्छा, अगला है दकानुन अत्ताजिरु है, तो दकानु दुकान, दुकानु ताजिरी। दुकान ताजरी, आगे। ओके, बैतुन है, बैतुन अल मुहंदिसु है, तो बैतुल एक आ जाएगी, उसकी पेश हट जाएगी, बैतुल मुहंदिसी। पढ़ती जाए। इस्मुल वलदी किताबुल्लाही बिन्तु तबीबी तबीबी मिफ्ताहु सियारती। सैयारत, ठीक है। माइक लिया करें और पढ़ा करें ताकि गलतियां निकले। अब इसका मीनिंग आता है दुकान ताजिरी, ताजिर की दुकान है, बैतुल मुहंदिस इंजीनियर का घर, इस्मुल वलदी लड़के का नाम, किताबुल्लाही अल्लाह की किताब, बैतुल तबीबी डॉक्टर का घर, और बिन्तु तबीब, सॉरी मैं अगेन में जरा बड़ा कर लूं, बिन्त है या तबीब की बेटी, मिफ्ताहु सियारती, मिफ्ताह मेरा ख्याल दरवाजा, चाबी, चाबी, और चाबी, चाबी उसकी गाड़ी की चाबी। पहले हम इसका तर्जुमा उर्दू में जब करेंगे, इसका तर्जुमा पहले लिखेंगे गाड़ी, और इसका तर्जुमा, हाँ, और बीच में क्या लगाएंगे, का या की या के, है ना। लड़के की किताब, है ना। जी जी, लड़के की किताब, हाँ, गाड़ी की चाबी, गाड़ी की चाबी। हाँ, तो लड़के का नाम, तो वो हम का की के बीच में लगाएंगे, और इस तरह से इसको कहते हैं मुरक्कबे इजाफी या पोजेसिव केस। पोजेसिव केस क्योंकि पोजेशन की बात हो रही है। लड़के की गाड़ी की चाबी, तो चाबी किसकी पोजेशन में, वो गाड़ी की पोजेशन में। इसी तरह बेड है, शरीर। अब यहाँ पे दो पेश आ रहे थे तो उनको दो जेर में चेंज करेंगे जी, ठीक है। अब पढ़ाई का टाइम जो है हफ्ते में एक ही बार होता है, तो उसमें आप प्लीज उसमें कोई भी अपने आप को एक्सक्यूज नहीं दें अभी। नहीं, मैं नहीं दूंगी अब, बहुत ज्यादा जी, इंशाल्लाह। हाँ, बहुत हो गया ना, बहुत हो गया। अगर अभी भी एक्सक्यूजेस देंगे तो अच्छा, अभी आप ही पढ़ लें, क्या होगा ये, इसको पढ़िए जी। बाबुल, एक मिनट, ओके, बाब अल मदरसा है, तो इसको बाबुल मदरसती, बाबुल मदरसती, इधर एक पेश लगाएंगे, दो नहीं लगाएंगे, बाबुल, और यहाँ पर एक कसरा लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, ओके, हिमारु रजुली, रजुली एक पेश होगी, और रजुली ला के नीचे एक जेर है, रजुली। बैतुल हामिदी, हामिदी आएगा, हामिदी आएगा, जी, बैतुल हाम अल आएगा ना, अलहाम, बैतुल हामिदुन। देखें, जो नाम होता है ना उसके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा सकते। जो भी नाम होता है ना, हाँ, वो पहले से ही मार्फा होता है ना, तो जी बिल्कुल, हाँ हाँ, तो उसके ऊपर तो नहीं लगाते अलिफ लाम। बैतु हामिदी, हामिदी क्यों आएगा, हामिदुन है ना असल में। ठीक, आगे। सियारतुल मुदीरी, आगे। मंदीलुल अम्मार, अच्छा ये अम्मार लड़के का नाम है, तो मंदीलु अम्मारिन, रुन होता है तो रिन हो जाएगा, ठीक है। अलिफ लाम नहीं आ रहा तो तनवीन आएगी, अलिफ लाम आएगा तो एक जेर आएगी, ठीक है। आपने तो सिर्फ लगाना है, मंदीलुल ना बोलें। देखिए आप हर जगह अलिफ लाम ऐड करती जा रही हैं। आपने मंदीलु अम्मार, अल नहीं है, अम्मारिन, हाँ, आगे। अम्मार, यहाँ पर इस्मु तालिबी, तालिबी, आगे। हाँ, बैतुल्लाही, गुड, फी किताबुल्लाही। अच्छा, इसमें क्या गलती है अभी?
फी किताबुल्लाह, ये मुरक्कब जारी है ना, बिशरुम फी की जगह, फी की वजह से यहाँ पे क्या आना चाहिए था? फी की वजह से बे ज़ेर आना चाहिए था, किताबिल्लाही। तो क्यों नहीं आपने लगाया? नॉर्मल एंडिंग नहीं, ये नॉर्मल एंडिंग नहीं आएगी जब फी आ जाएगा, तो फिर आपका कसरा एंडिंग आएगी। सही है, फी किताबिल्लाही। आगे जी, आगे है मिन बैतिल मुदर्रसी, मुदर्रसी वही, हाँ मुदर्रसी, मुदर्रिसी, मुदर्रिसी, मुदर्रसी ता उसके नीचे ज़ेर आ गया क्योंकि हरफ जार की वजह से। अलल मक्तबिल मुदीरी, आपने यहाँ पे फिर अलिफ लाम, आपने फिर यहाँ पे अलिफ लाम। हाँ, अला मक्तबिल मुदीरी, तो सोच के पढ़ने, हर जगह अलिफ लाम नहीं आता। अला मक्तबिल मुदीरी, जी ठीक है, मुदीरी। तो हाँ, तो इसके ऊपर आपने अलिफ लाम नहीं लगाना क्योंकि ये मिडल में आ रहा है, किताब मिडल में आ रहा है, उस पे अलिफ लाम नहीं लगाना, ठीक है जी। बैत मिडल में आ रहा है, उस पे अलिफ लाम नहीं लगाना। जो लास्ट में नाउन आएगा ना, उसके ऊपर अलिफ लाम लगता है। जी, यहाँ लग रहा है, और ये यहाँ मुरत्तब इजाफी है, इस वजह से ये जो है करेगा। और वो जब इसके साथ आ रहा है, जारी के साथ आ रहा है, तो उसके नीचे ज़ेर आ जाएगी। ये आपका जो मिम बैती है ना, ये मुरक्कब जारी है, ये मुरक्कब जारी है, मुरक्कब जारी। और ये वाला क्या है? ये है आपका बैतुल मुदर्रिसी या बैतुल मुदर्रिसी, ये आपका मुरक्कब इजाफी है। यहाँ पे दो मुरक्कब बन रहे हैं ना जी। चलें, ठीक है, चलें आप माइक म्यूट कर लें। अच्छा, आगे देखते हैं अभी कितना रहता है। अगर कंप्लीट हो सकता है तो मैं करवा देती हूँ, इसके बाद मेरी फौरन एक और क्लास भी है। इकरा, चलें अब यहाँ से, ये मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम पढ़ना चाहिए, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। सही है, तो इतना ही रहने देते हैं इंशाल्लाह। तो जिसको नेक्स्ट क्लास अभी ज्वाइन करनी है, पढ़ना चाह रहे हैं बुक 2, वो बुक 2 पढ़ ले, और जो जाना चाह रहे हैं, छुट्टी करना चाह रहे हैं, अभी नहीं पढ़नी बुक 2, तो वो छुट्टी कर सकते हैं, ठीक है। आप में से मैं इसको रूम को बंद करती हूँ, इस रिकॉर्डिंग को भी बंद करती हूँ, और फिर मैं दूसरा वाला रूम ओपन करूंगी, आप लोग आ जाइए।